So this is about H-1B and L-1 visas, sir. So it's true that number of bills have been placed before the US Congress, 4 to be precise. And recently, there have been 3 bills. One by Chuck Grassley and Dick Durbin. This is about curbing on H-1B visas. Subsequent to that, even before they were taken up for consideration, the processing, that's the premium reprocessing, where expeditiously the applications were disposed of, that has been dispensed with and stopped, for which the concern has been expressed. Equally, sir, there are 2 bills on anti-outsourcing. Now, as the Honorable Minister has said, that's true, that there are reports, sir, for every job outsourced, there are 2 higher value jobs which are created in the parent company back in the United States of America. Equally, it is important, sir, to make a distinction. And that's what I would urge. My question is, have we made this distinction very clear and firm to the US government that the temporary movement of skilled professionals from India, which is the requirement of the US IT industry, must not be mixed up as immigrants, because they are not immigrants. They are neither getting their social security contributions back, they are not getting any benefits. In fact, this is an ongoing issue between India and the United States. They get no benefits, and the visas are structured in a manner that they make billions of dollars in social security contribution returned to India, and now they are being humiliated. So credible assurances, I would urge the Minister, whether steps are being taken to ensure that they are protected, their rights are protected, and they are not treated as immigrants and deported. Thank you. मैंने उनके आधे प्रश्न का उत्तर तो पिछले प्रश्न के उत्तर में दे दिया कि जहां तो मैंने खुद ही स्वीकार किया कि कुछ बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन वो इस रूप में पारित ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। अभी विदेश सचिव गए थे जब यूएस, तो वो कांग्रेसमैन से भी मिले, जिसमें उन लोगों ने कहा कि नहीं, भारतीयों के वो बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से भी मिले। तो जहाँ तक H-1B और L-1 वीज़ा का सवाल है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय IT इंडस्ट्री और यहाँ के प्रोफेशनल्स का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हम उन्हें ये कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो आपकी नौकरियाँ नहीं ले रहे हैं, वो आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सोशल सिक्योरिटी की बात की, वो मसला आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, और उस बीच में दोनों सरकारें रही हैं, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। जब मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते राष्ट्रपति ओबामा से मिली थी, तो जो प्रमुख सवाल मैंने उठाया था, वो मैंने यही उठाया था, टोटलाइजेशन का। तो वो विषय बहुत पुराना चल रहा है। अभी तो इस समय जैसे आप कह रहे हैं कि तलवार नौकरियों की लटकी हुई है, तो ये विषय तो अभी पीछे पड़ा हुआ है। एक बार इनकी नौकरियां बच जाएं तो दोबारा से वो विषय उठाएंगे, लेकिन हर सरकार ने टोटलाइजेशन एग्रीमेंट की बात की। श्री दिलीप भाई पांड्या। Here the question was asked, and in that question it was stated that 11 million undocumented migrants. In reply, Honorable Minister has stated that there is no authenticate figure with her. Also, it is stated that US facilitate issued travel documents. I want to ask whether travel documents has been asked by any Indians, whether the government of India is trying to support, to help them to get those travel documents, and how many people have applied for that? Thank you. पहले तो मैं बताऊं कि जो मैंने कहा कि कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है, जब हम उनको अवैध कह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड कह रहे हैं, तो प्रामाणिक आंकड़ा कैसे हो सकता है? जो अवैध रूप से जाते हैं वो एम्बेसी से संपर्क ही नहीं करते, उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो क्यों आएंगे? तो कोई भी एम्बेसी ये नहीं कह सकती कि ये प्रामाणिक आंकड़ा है। ये आंकड़ा भारत सरकार के को उस समय एक रिपोर्ट में दिया गया था कि 2,60,000 है, जिसको हमने माना नहीं। रही ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की बात, वो आकर अप्लाई नहीं करते, वो क्यों आना चाहेंगे वापस? ये उनकी सरकार हमको देती है, और हम उनकी दिए हुए आंकड़े में सबको ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं दे देते। हम सबसे पहले उनकी राष्ट्रीयता की जांच करते हैं, और जब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ ये वाकई भारतीय हैं, तब उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हम ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट देते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट हम न दें तो वो उनको अवैध करके जेल में डाल देंगे, उन पर मुकदमा चलाएंगे, वो और संकट में फंसेंगे। तो ये वो स्वयं मांगने नहीं आते,
पर मैं आपको कह सकती हूँ कि 2014 से और अब तक 576 लोगों को हम लोगों ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आपके प्रधानमंत्री ने मेरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।